Sir, Employees Pension Scheme 1995, I'm fighting this cause since 2014. Several representations and interventions and submissions were made in this house. Unfortunately, nothing positive is coming from the Labour Ministry. So on 4/11/2022, the Supreme Court has given the full-fledged judgment. And by that judgment, the employees are entitled for the higher pension under the Employees Provident Pension Scheme of Employees Pension Scheme 1995. I draw the attention of the Labour Minister through you, sir, regarding the grave irregularity and injustice shown to the poor workers of this country. Sir, even after 2 years, that is lapse of 2 years, so far 1% of the total persons who have given the application has got only higher pension in the state of Kerala. Only 2% has got this pension. This is the media reports. Sir, you may kindly see that the total number of applications which have already submitted till August 7, 2024 is so far 17,48,775 applications were given. Only the EPFO has given the higher pension only for 8,401. So kindly see that even after 2 years, the Supreme Court judgment, the Employees Provident Fund organization is taking a very negative attitude towards the workers, not giving the higher pension. So my submission is higher pension has to be given at the earliest. And regarding the calculation of the pension also, a new method of calculation has been taken into, that is pro rata basis of allocation. That is pension 1/9/2000, before 1/9/2014 and after 1/9/2014, pensionable salary as well as pensionable salary and the average wages, that has been divided into 2 parts. Sir, it is against the act, it is against the scheme, and it is against all norms. So that has to be reconsidered. And the final point is regarding the minimum pension. So the minimum pension, sir, one second. In the 16 Lok Sabha, I have given a private member resolution. The whole house has unanimously consented to it, and a recommendation has already been given. So far, the minimum pension has been not increased. So I request for the enhancement of the minimum pension. These 3 issues has to be कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है, ऐसा किया कमाल। मैं आज़ाद पे अगर हूं तो बदगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। और आज के दिन भारत की ऐतिहासिक विजय का वो दिन है जिसके लिए मैं स्मरण करना चाहूंगा उन सभी पात्रों को जिन्होंने ऐतिहासिक विजय में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे ढाका में पैराट्रूपर्स को लीड करने वाले जनरल जे जैकब, या चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, या भारत के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी। और यह समय याद भी दिलाता है कि जब कोई ऐसा वक्त आता है तो उस समय हमारे नेता और उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से समर्थन किया जाता है। परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, और सर जिनका नाम यूएन में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं। मैं आज़ाद पे अगर हूं तो बदगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। मैम, आज मैंने कहा था हट करूंगा, 1.5 से 2 मिनट और चाहिए। अब मैंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर विस्तार से बोलूंगा जिस दिन अगर आया, अगर सिलेक्ट कमेटी को गया तो अलग बात है। लेकिन मैम, इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन था। नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूं कई दफा क्या होता है जब आप कोट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि सेमी कोलोन के बाद किसी को कोट मत करो, उसको हम लोग कहते हैं पुअर साइटेशन, कि किसी को कोट किया। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैम 30 सेकंड में कि मार्क्स ने कहा रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस, ऐसा कभी नहीं कहा मार्क्स ने। वो सेमी कोलन के बाद का एक सेंटेंस था, उन्होंने ये कहा इज द साय ऑफ द ऑप्रेस्ड, लेकिन सेमी कोलन के बाद का उठा करके कहा रे
रिलीजन के तो खिलाफ थे कार्ल मार्क्स। तो उसी तरह से साइटेशन के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वन नेशन की वो साइकिल टूटी थी। वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल मिड 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then it won't it undermine the idea of will of the people? मैं समझता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो और तभी जाकर के Kindly conclude. बस अभी तो 33 सेकेंड लिया है, 1 मिनट और दे दीजिए। मैम चेयरपर्सन, तारतम्य तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अपनी एक बात कह के खत्म करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपने का एक छोटा किस्सा। क्लासरूम में बैठे हुए थे सबसे पीछे, शिक्षक ने कहा, चूंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आओ इसको हल करो। ज्यों ही वो बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने कास्ट हिंदू अपर कास्ट के लोग थे वो दौड़ के बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा ये पोल्यूट हो जाएगा। मैम आज वो मान्यताएं नहीं है, लेकिन पोल्यूशन प्यूरिटी की नई मान्यताएं आ गई हैं, एक्सक्लूजन की नई मान्यताएं आ गई हैं। और आखिरी में ऑस्विज एक जगह थी पोलैंड में, जहां जिसको सिर्फ गैस चैम्बर से मत समझिए। ऑस्विज के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम ना सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, पूरी दुनिया ने। तो ये नफरत घृणा, इस पर लगाम लगे ना तो हर मोहल्ले में ऑस्विज होगा। और आखिर में मैम, मैं आज जद पे अगर हूं, निशाने पे, मैं आज जद पे अगर हूं तो बदगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। और आज के दिन भारत की ऐतिहासिक विजय का वो दिन है, जिसके लिए मैं स्मरण करना चाहूंगा उन सभी पात्रों को जिन्होंने ऐतिहासिक विजय में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे ढाका में पैराट्रूपर्स को लीड करने वाले जनरल जे जैकब, या चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, या भारत के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी। और यह समय याद भी दिलाता है कि जब कोई ऐसा वक्त आता है तो उस समय हमारे नेता और उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से समर्थन किया जाता है। परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, और सर जिनका नाम यूएन में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। अब मैं आगे कहना चाहता हूं सर, मगर एक इस सदन में जब हम 75 वर्ष के ऊपर एकत्र हैं तो शायद 75 वर्ष के इतिहास का वो सबसे ऐतिहासिक मौका था। तो मैं ये कहना सर आपके लिए आगे सुनिए सर, आप अरे लीजिए आप सुनिए, मैं एक बताना चाहता हूं सर, एक महत्वपूर्ण बात थी, एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक तरफ 7th फ्लीट भेजा गया था और चंद दिनों के अंदर अमेरिका ने मान्यता भी दे दी थी। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े, मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए। चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए। ये मुझे आज तक आश्चर्य है कि 93,000 दे के 54 नहीं ले पाए। सुलह की कौन सी शक्ल सुमरती रही। तो मैं इनकी पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा, अरे आपके नेताओं के लिए बोल रहा हूं, एक पंक्ति में कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं चीन छीन देश का गुलाब ले गया। पंडित नेहरू के लिए वो गुलाब का फूल लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, संविधान के संदर्भ में। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो बहुत ये बहुत अरे भैया सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए मैंने तो इनके नेताओं की तारीफ की, फिर भी नहीं हजम हो पा रही है इनसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब सुनिए, आज के हम संविधान के विषय पे आते हैं तो संविधान का सबसे पहला वाक्य है, द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग
सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन तीन शब्दों का अर्थ समझ लें तो संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है, मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि ये बात का आशंका थी कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सरवाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं, हम डेमोक्रेसी में सरवाइव किए हैं तो यह कोई अनायास नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मैं कोट करता हूं, कि गणतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है, यह इतिहास के आरंभ काल से भारत की व्यवस्था में थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, लोकतंत्र की अवधारणा भारत के लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है, इट्स नॉट एन एलाइन ऑब्जेक्ट। यह कोई अपरिचित चीज नहीं है, प्राचीन काल से भारत की व्यवस्थाओं में निहित थी, और उन्होंने बौद्ध संघों का उल्लेख किया। और मैं अपने सम्मानी मित्रों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में कहां से थी? 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों को देखिए। चोल साम्राज्य में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इलेक्टेड गांव के प्रतिनिधि होते थे, 6 कमेटियां होती थी जो इलेक्टेड ढंग से काम चलाती थी। उसके पीछे जाइए तो वैशाली का गणराज्य, जिसका उल्लेख हमारे जदयू के अध्यक्ष जी ने भी किया, और उसके पीछे जाइए तो वैदिक काल में सभा और समितियां बैठकर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य किया करती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर उन्होंने इन सारी परंपराओं के चित्र उसमें रखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत की डेमोक्रेसी मूल रूप में वहां से आती है। वैसे मैं एक और चीज कोट कर दूं, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भी जून 2018 में आरएसएस हेडक्वार्टर पे अपने भाषण में कहा था कि भारत ही लोकतंत्र का मूल है और वैशाली का गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य था। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत कैसा है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों को थोड़ा विदेश की बात ज्यादा समझ में आती है, तो देश क्या कहता है उससे ज्यादा समझिए विदेश क्या कहता है। और मैं सिर्फ 2 ही बड़े लोगों के नाम लूंगा। चाइना, मैं कहता हूं कोई भी जाकर चेक करे, चाइना में एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? तियानजाओ, TINZHOU। जाऊ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। अब तियानजाओ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए, तियान का अर्थ है हेवन और जाऊ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना की एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हेवन। एंशिएंट जापानीज में भारत का नाम है टेनजुक, दैट इज द सेंटर ऑफ हेवन। और ये कहते देश ही नहीं था, और चीन भी कह रहा है और जापान भी कह रहे हैं कि ये देश तो वो है जो स्वर्ग का केंद्र था। अब मैं बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में, अरब में 8वीं और 10वीं शताब्दी में जितने भी बड़े बड़े अरब के राइटर्स हुए, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने तबरी हो, इब्ने खल्दूम हो, उन्होंने क्या लिखा है? अजीदुल रिहल उल इलामीन बिल इलादुल हिंद, यानी व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द इंडिया द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कम्स टू अस। तो इधर का भी, पूरब का भी बता दिया, पश्चिम का भी बता दिया, मगर हम क्या करें? ऑर्थर शोपेनहावर ने लिखा इंडिया के लिए कि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम की ऊपरिस्टिक फिलॉसफी आई है। ये हमारा देश था, मगर अफसोस आज भी लोग ये कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भारत इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप कहते हैं, मगर अभी भी कहीं कहीं लोगों को डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहीं और से नजर आते हैं। इसलिए हमारे इस देश के लिए सभापति महोदय क्या कहा जाता था? गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात ये भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं, क्योंकि हम मोक्ष भूमि है। और वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा,
जो लोग मानते नहीं है कि भारत डेमोक्रेसी कि वो कहते हैं इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 से आया था, वो इंग्लैंड को मानते मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मदर इन लॉ हमारी इसी सदन की सदस्य हैं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ना मानो तो मदर इन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी ही मान लेना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि ये देश कैसे एक था जो वी द पीपुल कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था तो उससे पहले वो दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्व क्या है? यह माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान विष्णु वो श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान है, क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। थोड़ा हट करूंगा वक्त के लिए, लेकिन आखिर में अभी चालू तो करिए हुजूर। सर, माननीय सभापति महोदय, अच्छा है हम सब संविधान पे बात कर रहे हैं। उस सदन में भी हुई, इस सदन में भी तमाम साथियों ने संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। जब से इस संसद में आया हूं और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं, बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू। वो ढाल है, वो रक्षा कवच है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सब शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर।
अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सर माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाजपा के कई साथी, और चूंकि ये संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर मैंने विस्तार से अध्ययन किया है, नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा, तमाम साथियों ने। सर कई तरह के उस पे विचार थे, लेकिन डोमिनेंट विचार था कि इसको रखो, किसी दिन वक्त आएगा इस पर बात होगी। सर 44 आर्टिकल जो कि ड्राफ्ट में 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का इंप्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रिवेशन का जन्म हो रहा है। 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39C, वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में कि वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाए कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे, ये नहीं होना चाहिए। अब सर मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से एक आध डेथ हो चुकी होगी, सीवर में उतर करके। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं, एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ है में नहीं आते, ये हमारे हिस्सा नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। हाँ, ये अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीधी नुमा पदानुक्रम में वो नीचे आते हैं, उनके उन पर गौर थोड़ा हम कम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है, फ्री के बाद डॉम नहीं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब में था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सर्जिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, एक मिनट आप, मैं मेरा टाइम पॉज कर दूं, मेरा टाइम पॉज कर दूं, मेरा टाइम पॉज कर दूं। मैम चेयरपर्सन, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। मैम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी यहां बोल रहा हूं, मूलवासी बचाओ संघ मंच है,
छत्तीसगढ़ में अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा तो आप कहोगे नक्सली है। अब मैम चेयरपर्सन, एक और चीज कहना चाहता हूं। मैं पीड़ा साझा करता हूं बांग्लादेश में जो हो रहा है, साझा करता हूं पीड़ा। 71 के बारे में पढ़ा था, अभी देख रहा हूं। लेकिन मैम मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूं। नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी नोआखली में दर दर भटक रहे थे, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मैलिटी, वो दौर था। उन्होंने एक बात कही थी, आज जो आज का दक्षिण एशिया है, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश निकला है, हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है। हम बड़े भाई वाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बाकी में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, संविधान तक नहीं आया। लेकिन हम अपनी अकलियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम कह पाते बांग्लादेश को, लर्न फ्रॉम अस, टू पाकिस्तान, लर्न फ्रॉम अस, दिस इज हाउ वी ट्रीट। लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड अगर उसमें कमियां रहती है, मैं मैम चेयरपर्सन, माई टाइम शुड बी पॉज, माई टाइम शुड बी पॉज, माई टाइम शुड बी पॉज, माई टाइम शुड बी पॉज। मैम एक चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अंबेडकर साहब को कोट किया गया, अंबेडकर साहब को कोट किया गया, और एक मिनट किसी की भावना आहत हुई है तो मैं वापस लेता हूं। इट इज प्राइमरीली ए मोड ऑफ, सुनिए, इट इज प्राइमरीली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ फॉर्म ऑफ लिविंग, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एसोसिएटेड लिविंग, कितना इसको अपने जीवन में उतार पाए। ऑफ कॉन्जॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, कितना उतार पाए। जातिगत जनगणना की जब बात होती है तो बट जाते हैं हम। क्यों बट जाते हैं भाई? वर्गीकरण की बात होती है, बिना जनगणना के वर्गीकरण कैसा? एनएफएस के माध्यम से एक नई रवायत का जन्म हो गया है। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता, इक्विवेलेंस को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। आपका दोष नहीं भी दूंगा, कहूंगा कि अधिकारी वर्ग के अंदर अभी भी वो मानस है कि वो रिप्रेजेंटेशन से परेशान होता है, चिढ़ता है, उसको लगता है ये यहां कहां आ गए। अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ, कई लोगों ने कहा हम तो इतने कम नहीं हो सकते। विजिबिलिटी और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में फर्क होता है। विजिबल आप इसलिए अपने को समझते हैं ज्यादा कि आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप सड़क पे हैं, आप चौक पे हैं, आप चौराहे में हैं, तो आपको लगता हम तो बहुत, हमें कम क्यों दिखाया गया? उसके इस रिश्ते को हम सबको समझना होगा। मैम चेयरपर्सन, और जो मैंने कहा conjoint experience and associated living, together with that I'll take you for a minute to what Jawaharlal ji said in the beginning of objective resolution. उन्होंने कहा, और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं, कि आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो 5000 साल का अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अभिभूत भी हूं, लेकिन मेरी चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं अपने साथियों के साथ। और देन ही मेंशन्ड ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। मैंने इस सदन में एक दिन कहा था कि 1789 के रेवोल्यूशन के बाद जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आया, जवाहरलाल जी ने कहा तब के बादशाह ने वहां
कमरे बंद करवा दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठ सकती है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से बरामदा, और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और ओथ लिया। उसको कहते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। उन्होंने क्यों यह उदाहरण दिया कि हमारी डेमोक्रेसी में भी कभी इस तरह के चैलेंज आ जाए तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी, संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी, वो इबारत देखेगी। और इबारत